میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کے سامنے کے 4 دانت وہ توڑ دیے گئے ہیں تشدد سے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے رائٹ ہینڈ پر چہرے پر ایک گہرا زخم تھا۔ وہ ہم سے پوچھی تھی میری امی کیسی ہے، سے پوچھتے تھے بچے کیسے ہیں، مریم کیسی ہے، احمد کیسا ہے، اور پھر پوچھتی تھی وہ چھوٹا سلیمان جو 6 ماہ کا تھا وہ تو اب بڑا ہو چکا ہوگا، سلیمان کیسا ہے۔ اللہ کی کتاب کی حافظہ بیٹھی اللہ کی کتاب سے سورہ مریم سنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مریم علیہ السلام پر جو تکالیف آئی ہیں میں سورہ مریم پڑھتی ہوں اور اس سے حوصلہ پکڑتی ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ 5 سال بڑی ہے ڈاکٹر عافیہ سے، میڈیکل ڈاکٹر ہے۔ گزشتہ 20 سال سے یہ اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہے، عافیہ کے 2 بچوں کو بھی پال رہی ہے۔ عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر بنایا، عافیہ کی بیٹے احمد کو ڈاکٹر بنایا، اور احمد قرآن کا حافظ بھی ہے۔ حافظ ماں کا حافظ بیٹا، ڈاکٹر ماں کی ڈاکٹر بیٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 20 سال سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا پرچم بھی اٹھائے رکھا ہے۔ گرمی اور سردیوں میں دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں امریکہ جانے کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر کراچی گیا تو مجھے ڈاکٹر عافیہ کے بچوں نے بتایا کہ ہمیں ٹیلی فون کالز پر، گمنام کالز پر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ بچوں کو قتل کی دھمکیاں، ڈاکٹر فوزیہ کو قتل کی دھمکیاں کہ امریکہ نہ جاؤ۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں گا، میں آپ کو سہولت دوں گا۔ اس حالت میں بھی اس خاتون نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا پرچم سر بلند رکھا ہے۔ تو میں ڈاکٹر فوزیہ کو آئرن لیڈی ہے، صنف آہن ہے، مضبوط مثالی خاتون ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے اس پرچم کو گزشتہ 20 سال سے 2 اشروں سے اس کو اٹھائے رکھا ہے۔ میں کلائیو اسمتھ کو بھی، برطانوی وکیل ہے، برطانوی وکیل ہے، مسلمان نہیں ہے، انسانیت کے رشتے پر 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے رہا کر چکا ہے، وکیل ہے، بین الاقوامی شہرت کا وکیل ہے، ہیومن رائٹس کا وکیل ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کو درخواست کر دی انہوں نے میری درخواست پر ڈاکٹر عافیہ کا کیس لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رضاکارانہ طور پر 1 روپیہ 1 پیسے کا وہ فیس اور وہ رقم اور وہ معاوضہ نہیں لے رہا، پرو بونو رضاکارانہ طور پر وہ ڈاکٹر عافیہ کا کیس وہ کر رہا ہے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، بغیرت حکمرانوں سے کہتا ہوں، ایک کلائیو اسمتھ جیسا انسانی ہمدردی بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جس نے 87 قیدیوں کو گوانٹانامو سے نکالا۔ جو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا کیس وہ پرو بونو رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ لڑ رہا ہے، تو میں کلائیو اسمتھ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل لائر کو اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کی بہن ڈاکٹر عافیہ سے کس حال میں ملاقات کی؟ میں نے ان سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ زنجیروں کے اندر باندھی گئی تھی، جیل کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں 1 مربع میٹر کا شیشہ لگا کر شیشے کے اس پار کرسی پر ڈاکٹر عافیہ بیٹھی تھی، شیشے کے اس پار کرسی پر ہم تینوں، میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ہمارے وکیل کلائیو اسمتھ بیٹھے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے لیکن بہن بہن سے مل نہیں سکتی تھی، بہن بہن کو گلے نہیں لگا سکتی تھی، بہن بہن کو اپنے ساتھ لگا نہیں سکتی تھی، ان کا غم ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم
रिसीवर के ऊपर एक दूसरे को देखकर, टेलीफोन रिसीवर के ऊपर एक दूसरे से बात करते थे। और मुझे क्लाइव स्मिथ ने बताया कि मैंने 87 लोगों को ग्वांटानामो से रिहा किया है। 87 लोगों पर जितना जुल्म हुआ है उससे ज्यादा जुल्म एक आफिया के ऊपर हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्लाइव स्मिथ वकील जिसने 87 कैदियों को ग्वांटानामो से निकाला है उसकी बात है कि 87 लोगों के ऊपर ग्वांटानामो में इतना जुल्म नहीं हुआ है जितना एक इस्लाम की बेटी हाफिज़े कुरान, उस दान पान की उस बेटी, उस आफिया सिद्दीकी के ऊपर हुआ है। हम इस हालत में मिले कि उनको जंजीरों के अंदर लाया गया और कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। मैंने देखा कि उसके ऊपर के सामने के 4 दांत वो तोड़ दिए गए हैं तशद्दुद से। मैंने देखा कि उसके राइट हैंड पर चेहरे पर एक गहरा जख्म था जो कि अब मुंदमिल हो चुका था, लेकिन उसका निशान बाकी था। मैंने देखा कि उसका स्कार्फ फटा हुआ था, उसका स्कार्फ फटा हुआ था। मैंने देखा कि उसके कान के पीछे सर के ऊपर जख्म था जिसकी वजह से उनके सुनने की, समाज की सलाहियत मुतासिर थी और वो मुश्किल से सुन रही थी। मैंने इस हाल में इस्लाम की उस बेटी को, पाकिस्तान की उस गैरत को देखा। और मेरे भाइयों, वो हमसे पूछ रही थी मेरी अम्मी कैसी है। उनको ये पता नहीं है कि अम्मी को तो इस दुनिया से गए 1 साल हो चुका है। वो हमसे पूछते थे बच्चे कैसे हैं, मरियम कैसी है, अहमद कैसा है। और फिर पूछती थी वो छोटा सुलेमान जो 6 माह का था वो तो अब बड़ा हो चुका होगा, सुलेमान कैसा है। हमें कोई इल्म नहीं है, सुलेमान लापता है। हमें भी इल्म नहीं है कि सुलेमान जिंदा है, जिंदा है तो किसके पास है या कत्ल किया जा चुका है। हम उनको यही बताते थे कि हाँ सुलेमान ठीक है। हमें भी सुलेमान का पता नहीं है कि सुलेमान कहाँ है, सुलेमान जिंदा है या सुलेमान को कत्ल कर दिया गया है। मेरे भाइयों, जिस हिस्से में जेल का उसको रखा गया है, जब आप उस जेल में जाते हैं इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे हैं, 1-1 फुट उसकी चाबियां हैं और जब वो दरवाजे खुलते हैं गड़गड़ाहट की आवाज आती है। हर तरफ जंजीरें, हर तरफ बड़ी बड़ी चाबियों के गुच्छे, हर तरफ हथकड़ियां और जंजीरों और हथकड़ियों और चाबियों की आवाजें। उस जेल के अंदर जो जंजीरों की झंकार है वो आपको हर तरफ नजर आएगी। उसको कहते हैं SHU, स्पेशल हाउसिंग यूनिट, इंतहाई खतरनाक कैदियों का यूनिट। उसके अंदर डॉक्टर आफिया को रखा गया है। 6 बंदे 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखते हैं। उसके वॉशरूम में भी कैमरे लगा दिए गए हैं, उसके वॉशरूम और बाथरूम और टॉयलेट में भी कैमरे उन जालिमों ने लगा दिए हैं। एक एक लम्हा उनकी आंखों के नीचे वो गुजार रही है। मेरे भाइयों, मैंने उनके साथ बातें की, उन्होंने मुझे सूरह मरियम का कुछ हिस्सा सुनाया। वस्कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। अल्लाह की किताब की हाफिजा बेटी अल्लाह की किताब से सूरह मरियम सुना रही थी और मुझे कह रही थी कि मरियम अलैहिस्सलाम पर जो तकालीफ आई हैं मैं सूरह मरियम पढ़ती हूँ और उससे हौसला पकड़ती हूँ। वस्कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। मेरे भाइयों, वो मुझे दुआएं बता रही थी, वो मुझे अस्कार बता रही थी कि किस तरह वो इस जेल के अंदर अपनी दुआओं और अस्कार का वो विर्द करती है। मुझे अफसोस तो इस बात का है 20 साल से एक भी पाकिस्तानी हुकूमत ने, खा वो मिलिट्री हो खा वो सिविल हो, उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर आफिया का केस नहीं उठाया। और केस उठाना तो बड़ी बात है, 20 साल के बाद उनकी बहन को मैं लेकर गया और उनकी बहन से उनकी मुलाकात करवाई। 20 साल के बाद डॉक्टर आफिया की अपनी बहन से इस
इस हालत में मुलाकात हुई कि जंजीरें उनके हाथ में थी, शीशे के पार वो बैठी हुई थी, अपने बहन के गले मिलकर उसके साथ अपने गम को हल्का करना वो नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों, ये डॉक्टर आफिया ये बेगुनाह है। डॉक्टर आफिया ये इसके खिलाफ मंसूबे के तहत, साजिश के तहत मुगालते फैला दिए गए हैं, गलत फहमियां फैला दिए गए हैं। कोई कहता है ये लेडी अल-कायदा है, कोई कहता है ये दहशतगर्द है, कोई कहता है ये डायमंड्स और हीरो की तिजारत करके अल-कायदा की फंडिंग करती थी, कोई कहता है ये अमेरिकन शहरी है। ये सब फ्रॉड और धोखा है। डॉक्टर आफिया अमेरिकी शहरी नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी है। डॉक्टर आफिया लेडी अल-कायदा नहीं है। उनको जो सजा हुई है उसमें न अल-कायदा का जिक्र है, उसमें न 9/11 का जिक्र है, उसमें न दहशतगर्दी का जिक्र है, उसमें न बम धमाकों का जिक्र है। उसको सजा इस पे हुई है कि इसने गजनी में अमेरिकी फौजियों से, 4 अमेरिकी फौजियों से बंदूक छीनकर उन पर फायर की, जिससे ना कोई जख्मी हुआ ना कोई मरा। अलबत्ता जब उसने फायर की तो 2 गोलियां आफिया को लगी, जो वेंटिलेटर पर थी, और वेंटिलेटर पर उसे गजनी से अमेरिका मुंतकिल किया गया। यह है उसके ऊपर केस। उसके ऊपर अल-कायदा का केस नहीं है, उसके ऊपर 9/11 का केस नहीं है, उसके ऊपर बम धमाकों का केस नहीं है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस नहीं है। लोग कहते हैं डायमंड्स की तिजारत करती थी। 1990 से लेकर 2001 तक डॉक्टर आफिया एक दफा भी अफ्रीका का सफर नहीं किया। उसने कोई डायमंड का, कोई हीरो की तिजारत नहीं की। वो एक बेगुनाह पाकिस्तानी है।